Good morning, dear students. Dear students, today in this lecture we will discuss about exercise 8.1. Before that, we want to recall the theorems which we have done in our previous lecture. Dear students, in this exercise 8.1, we will use 8 theorems. First theorem is related to a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangle. कहने का मतलब जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वह उसको टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. सेकेंड थ्योरम 8.2, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं. थर्ड थ्योरम है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम. इसमें कहता है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, अगर आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम बन जाएगा. और नेक्स्ट 8.4, यानी कि मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है अगर उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वह आपका पैरेललोग्राम होगा. 8.4, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. 8.6 में कहता है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के एक दूसरे को. एंड 8.7, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम. कहता है अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वह क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा. ये 8.7 था. और 8.8 थ्योरम कहती है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल. अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं तो इन दैट केस द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. These are the theorems which we have done in our previous lecture. So, dear students, let us try to solve exercise 8.1 question number first. Question number first says that the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. कह रहा कि एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंगल्स का रेशियो 3:5:9:13 गिवन है और फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. आपको सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं इसी क्वाड्रिलेटरल के. तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन रेशियोज ऑफ साइड्स, रेशियोज ऑफ एंगल्स है 3:5:9:13. If we consider the common ratio, let x be the common ratio. Then angles क्या होंगे? 3x, 5x, 9x and 13x of the given quadrilateral. Now, you know the sum of all angles of the quadrilateral is 360 degree. We know that sum of all angles of quadrilateral is equal to 360 डिग्री. सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री.
Now 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360. 3x plus 5x is equal to 8x. 9x plus 13 is equal to 22. 22 में 8 ऐड करेंगे तो 30x is equal to 360. Then x is equal to 360 divided by 30. 0 0 cancel. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? x is equal to 12 degree. So the value of x is, it means common ratio is x, then the angles of the given quadrilateral. Suppose that this is the quadrilateral ABC, ABCD, in which angle A represent 3x, angle B represent 5x, angle C represent 9x, angle D represent 13x. Now the value of this angle A is equal to 3x. 3 multiplied by 12 degree is equal to 36. Angle B is equal to 5x. 5 multiplied by 12 is equal to 60 degree. Angle C is equal to 9x. 9 multiplied by 12 degree is equal to 108. Angle D is equal to 13x. 13 multiplied by 12. What is the value of this angle? You should write this value. Is that clear? So first we write the ratio of the given angles, then we consider x as a common ratio. We should write all these angles with the help of this common ratio, and we know sum of all angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. Add these angles and get the common value of these angles. तो common ratio में आपकी वैल्यू कितनी आई? 12 डिग्री. Now put this value in angle A, B, C and D. We get our required answer. Dear students, see second question. If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. कह रहा है कि किसी भी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल इक्वल हैं तो आपको प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम कैसा होगा? रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेगा. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज. फर्स्ट वी ड्रा पैरेललोग्राम ABCD. सपोज दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD. ABCD is a parallelogram in which diagonals are equal. Diagonals are equal means AC is equal to BD. We want to prove ABCD is a rectangle. How can we prove? So dear students, hierarchy के अकॉर्डिंग हम इसे करते हैं सॉल्व. फर्स्ट वी शुड राइट द गिवन. आपके क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन होगी उसको पहले राइट करेंगे. गिवन क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम. AB लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम in which diagonals AC is equal to BD. This value is given in our question. Now we want to prove ABCD is a rectangle, or that is
इसके किसी एक एंगल को आप क्या कर दीजिए 90 डिग्री दिखा दीजिए, एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आप प्रूव कर देंगे तो ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए इसे क्या करें, ये देखिए ऑलरेडी गिवन है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन ही है, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वैल्यूज हमें ऑलरेडी थ्योरम में डिफाइन की गई हैं। अब इन्हीं के बेसिस पर इसे हम प्रूव करेंगे। प्रूफ, हाउ कैन वी प्रूव? Dear students, see here triangle ABC and triangle DAB. In triangle ABC and triangle DAB. Now see AD is equal to BC. Why? Because opposite sides of parallelogram are equal. Now second, AB is a common side. See, in both triangle AB is a common side. AB is equal to BA. This is the common side. Now third thing is given AC is equal to BD. AC is equal to BD. This is the given in our question. Now three sides are equal in these two triangles, so these two triangles are congruent to each other. We should write this value here. So triangle ABC congruent to triangle DAB by side rule. साइड रूल के बेसिस पर ये आपका जो ट्रायंगल दोनों है कॉन्ग्रुएंट है। बाय CPCT we should prove angle A is equal to angle B. Angle A is equal to angle B by CPCT. तो CPCT के बेसिस पर ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो गए। सिंस ये आपका पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर। तो ये AD और BC पैरेलल साइड्स हैं और AB आपका ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस AD पैरेलल टू BC and AB is a transversal. AB आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा। यहाँ पर AB भी ट्रांसवर्सल का काम करेगा, AC भी ट्रांसवर्सल का काम करेगा, BD भी ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो यहाँ पर मैं AB को कंसीडर करता हूँ ट्रांसवर्सल को। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, यस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों या ट्रांसवर्सल की सेम साइड की एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देखिए आपने प्रूव किया है CPCT से एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B अगर आपने प्रूव किया है तो
इसे यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। एंगल ए जो होगा ये आपके DAB से रिलेटेड है, इसको यहाँ राइट कर सकते हैं, बी को यहाँ पर राइट कर सकते हैं। ये ABC से रिलेटेड बी है, DAB से रिलेटेड आपका एंगल ए है। तो एंगल ए के प्लेस पर बी या बी के प्लेस पर ए आप राइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। We get angle A plus angle A is equal to 180 degree. Now to angle A is equal to 180 degree. Now the value of angle A is equal to 180 degree divided by 2. We get this value is equal to 90 degree. एंगल ए कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। So we call ABCD is a rectangle. So ABCD is a rectangle, hence proved. आपने एक एंगल को प्रूव कर दिया 90 डिग्री, तो अदर एंगल को प्रूव करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये AC के इक्वल हो जाएगा, ये भी दोनों इक्वल ही हैं, तो इन दोनों का सम भी तो 180 ही तो बनेगा। इट मीन्स ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सो दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जब हमने डिफाइन किया था तो ये सारी वैल्यूज़ आपको बताई गई थी कि इस रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल भी इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, बट हियर उसकी ज़रूरत नहीं। तो ये प्रूफ है आपका। प्रूफ बहुत ही सिंपल होगा कि आप दो ट्रायंगल कोई भी कंसीडर करिए। मैंने यहाँ पर ABC एंड DAB कंसीडर करके इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद एंगल AB को सेम कर दिया है। आप अगर चाहें तो ये भी ले सकते हैं, ABC और एक ट्रायंगल लेंगे DCB भी लेकर आप प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। B को C के इक्वल करके, चाहे B या C को 180 के फ्रेम में कन्वर्ट करके B की वैल्यू आप 90 निकाल सकते हैं। किसी भी टू ट्रायंगल को यहाँ पर कंसीडर करके आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए और एंगल सेम करिए। कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 दिखा के आप वहाँ से वैल्यू निकालिए किसी एक एंगल की 90 डिग्री। तो अगर आपके इस पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री का है तो ये पैरेललोग्राम आपका कौन सा हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के थोड़े क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप सारे क्वेश्चंस आसानी से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपके थ्योरम्स तैयार नहीं हैं, कैसे उनको अप्लाई कहाँ करना है, तो एप्लीकेशन अगर आप किसी थ्योरम का नहीं जान रहे हैं तो आपके लर्न करने से कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। थ्योरम्स आप लर्न ही ना करिए, उसको आप सीखने का प्रयास करिए कि थ्योरम क्या कहना चाहती है। हाउ कैन वी अप्लाई द गिवन थ्योरम इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप कैसे थ्योरम्स को अप्लाई करके उसे सॉल्व करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉन्ग्रुएंसी आपको ट्रायंगल के चैप्टर में डिफाइन करवाई गई है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी आपकी 4 टाइप की है, SSS, SAS, ASA, AAS और RHS। ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी है। इन्हीं के बेसिस पर आप ट्रायंगल्स जो गिवन होते हैं पेयर में उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। आफ्टर दैट यूजिंग CPCT आप गिवन ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद उनके अदर पार्ट्स को भी इक्वल प्रूव कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज so that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at 90 degree means right angles, then it is a
rhombus. In this question, dear students, diagonals of quadrilateral bisect each other at right angle. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपसे क्वाड्रिलेटरल यूज किया है, तो क्वाड्रिलेटरल कुछ भी हो सकता है, रोम्बस भी प्रूव ही करना है, और क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम डिफाइन नहीं किया है। तो फर्स्ट तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम। आफ्टर दैट वी विल प्रूव ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड इसके इक्वल हैं। जब इसके सारे साइड इक्वल हो जाएंगे तो पैरेललोग्राम भी है, सारी साइड भी इक्वल है, और इसके जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, तो पैरेललोग्राम प्लस इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, प्लस इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। मीन्स रोम्बस को प्रूव करने के लिए आपको इसके सारे पार्ट को क्या करना पड़ेगा, रोम्बस की प्रॉपर्टी के बेसिस पर सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। तो रोम्बस होने के लिए क्या करना चाहिए हमें, अ पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, दैट इज अ रोम्बस। तो रोम्बस को प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल अगर गिवन है तो उसके सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए और वह ऑलरेडी एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो जो क्वाड्रिलेटरल आपको क्वेश्चन में गिवन है इसमें कह रहा है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर। तो क्वाड्रिलेटरल कोई भी आप एक कंसीडर कर लीजिए, ए बी सी डी आपने एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर लिया, ए बी सी डी, और इसके जो डायगोनल्स हैं, फर्स्ट डायगोनल ए सी एंड सेकेंड बी डी, तो ये जो डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट कर रहे हैं कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। बाइसेक्ट करने का मतलब जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं वहाँ से डिस्टेंस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, मीन्स ये पार्ट्स इक्वल हैं। अब ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये आपको गिवन है। क्वाड्रिलेटरल में इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, वी शुड राइट दिस वैल्यू हियर, गिवन ए बी सी डी, लेट ए बी सी डी इज अ quadrilateral in which diagonal AC and BD bisect at O, bisect each other at right एंड 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। दैट इज ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, एंड दीज ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, मीन्स ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है, इतनी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही हम प्रूफिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्रूविंग अगर स्टार्ट करना है तो पहले हमें क्या करना है, टू प्रूव। टू प्रूव में आपको ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इसे आपको प्रूव करना है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, हाउ कैन बी प्रूव? डियर स्टूडेंट्स, रोम्बस को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा? फर्स्ट थिंग इज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। After that, second thing, all sides are equal,
ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए और ए डी। एंड अगर ये आपका पैरेललोग्राम हो गया और सारे साइड इसके इक्वल हो गए, डायगोनल बाइसेक्ट 90 डिग्री पर ऑलरेडी कर ही रहे हैं, मीन्स इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये एक पार्ट आपका ऑलरेडी प्रूफ है, केवल आपको ये प्रूव करना है कि ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है और इसके सारे साइड्स इक्वल है। इतनी वैल्यू अगर हम प्रूव कर देते हैं तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल होगा क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। लेट अस सी, फर्स्ट वी वांट टू प्रूव ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम है, इसे हम प्रूव करना चाहते हैं। तो पैरेललोग्राम कब होंगे, जब उनके अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे। तो अपोजिट साइड पैरेलल और अपोजिट साइड इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास एक ट्रायंगल ऑलरेडी आपको गिवन है। इसमें अगर आप कंसीडर करें ये ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी, ए ओ बी सी ओ डी अगर आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और ये एंगल आपका वर्टिकली अपोजिट है 90 डिग्री। तो एस ए एस के बेसिस पर ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक, जब कन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सी पी सी टी से आप क्या करेंगे, ए बी को सी डी के इक्वल कर सकते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल कर सकते हैं और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हम कर सकते हैं। या एक ही पार्ट आप इक्वल करिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी। तो जब ए बी सी डी के पैरेलल में है तो सिमिलरली आपका ए डी जो होगा वो बी सी के पैरेलल में हो जाएगा। इट मीन्स ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी आपके पैरेललोग्राम बन जाएंगे। देन इसकी सारी साइड इक्वल कर देंगे। साइड इक्वल करने के लिए इसे ले लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हम कन्ग्रुएंट प्रूव करके ए बी को बी सी के इक्वल कर देंगे। तो सिमिलरली आपके ऐसे अदर भी पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे और ये आपका ये गिवन क्वाड्रिलेटरल रोम्बस बन जाएगा। लेट अस प्रूव फर्स्ट पार्ट, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सी हियर, prove in triangle AOB and triangle DOC, OA is equal to OC, ये आपका गिवन है। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, दिस इज आल्सो गिवन, एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज आल्सो गिवन। और वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये भी हो सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हो सकते हैं। सो ट्रायंगल ए ओ बी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ओ सी बाई एस ए एस रूल। एस ए एस रूल से ये आपके कन्ग्रुएंट हो गए। इज दैट क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट्स, बाय CPCT we should write this value here, AB is equal to CD, AB is equal to CD by CPCT.
CPCT के बेसिस पर ये प्रूफ हो गया। एंड एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, ये भी बाई CPCT है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इक्वल है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो लाइन सेगमेंट AB पैरेलल टू CD, लिखेंगे सिंस अल्टरनेट इंटीरियर angles are equal, so AB parallel to CD, AB CD के पैरेलल में है, दैट इज ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड अदर पेयर ऑफ opposite sides are also parallel to each other, then the given quadrilateral is a parallelogram। तो ऐसे सिमिलरली करके आप दिखाएंगे, डेट इज ना लगा के, क्योंकि अदर पेयर भी हमें प्रूव करना है। वन पेयर अगर है तो वहाँ पर ट्रैपेजियम भी तो क्रिएट हो सकता है। तो सिमिलरली करके यहाँ पर हम इसे भी राइट करेंगे सिमिलरली। AD is equal to BC and AD parallel to BC। ऐसे सिमिलरली आपके ये भी इक्वल और पैरेलल हो सकते हैं। सो फ्रॉम, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करिए और इसे आप इक्वेशन सेकेंड। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, ABCD आपका पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। Why? Because opposite sides are equal and opposite sides are parallel to each other. Now, dear students, we want to prove all sides are equal. सारी साइड इक्वल है, इसे कैसे हम प्रूव करेंगे? अब कंसीडर करिए ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB। Let us prove second part. In triangle AOB and triangle COB, angle AOB is equal to angle COB, OA is equal to OC। तो OA किसके इक्वल है? OC के, ये आपका गिवन है। एंगल AOB is equal to एंगल COB is equal to 90 डिग्री, ये भी गिवन है। एंड OB is a common side, OB is a कॉमन साइड, OB कॉमन साइड है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
COB on the basis of side angle side rule। तो साइड एंगल साइड के रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कन्ग्रुएंट है। सो बाय CPCT AB इज इक्वल टू BC बाय CPCT। वी कंसीडर दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड देखिए, AB इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू BC। अब AB BC के इक्वल है तो BC इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू AD एंड AD इज इक्वल टू CD। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड we get AB is equal to BC, BC is equal to CD, CD is equal to AD or DA। So ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus। Why? Because all sides are equal, all sides are equal and the given quadrilateral is a parallelogram। तो अगर आपका कोई गिवन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, ऑल साइड्स उसकी इक्वल हैं, इन दैट केस द गिवन पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। और एक प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी आपकी गिवन ही है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स, you should write these questions in your fair copy and try to understand the concept which we include in this problem. We will discuss next question in our next video. Thank you for watching this video. Have a great day.